नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कौर बजाज यानी के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। As we say every day, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, good evening, Vanakkam, Shalom, Ni hao in Chinese, Konnichiwa in Japanese, Pradeep ji. Abaru Yako, Jambo to the people in South Africa, East Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And we got viewers, our viewers there. Wow. In Africa. Absolutely lovely. So, polls are finally over. 75-day polls. Polls are finally over. Last day of polling ended today, and whatever are the exit polls that we are seeing, they're more or less confirming what we've been saying all along. Exactly. But anyway, you know, I had never seen the BJP lose in an exit poll, by the way, in a long That's time. what you always said. मतलब हर एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती है साहब। Yes, yes. भले असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन जीते रहे और सारी असेंबली इलेक्शन भी उन्होंने जीती हैं। इनफैक्ट पिछली मरतबा आपको याद होगा दिल्ली की भी जो एग्जिट पोल थी उसमें बीजेपी जीत रही थी। Yes, yes, yes. Where आम आदमी पार्टी came back with 62 out of 70 seats. खैर, in any event, I don't want to make fun of the work of pollsters. Sometimes they have been very deadly accurate. But I wonder what will be the reaction of the India Alliance when they see these numbers, because if the numbers which are coming out in the exit polls actually translate into real results, Pradeep ji, we might have a major problem, because the kind of feedback that we were getting from people, you know, on the street, they may find it very difficult to come to terms with the fact that, hey, listen, this is not what we had voted for. Then what happens? So up till now, what we worried about, you know, places like Karnataka, where the Congress had very strong state leadership. We thought that everybody thought that the Congress will perform very well. But then, as Karnataka has always decided that where state elections are concerned, we are going to vote probably for the Congress, and where the general elections are concerned, they are probably going to vote for the BJP. So they believe the BJP in national affairs Ji. and the Congress in the state affairs. And they'll continue, probably seems to be continuing the trend. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी बाहर मतलब उत्तर में, नॉर्थ में, if they are not doing that well, कहीं जगह पे जहाँ में उनकी मैक्सिमम सीटें आई थी, मतलब 100% आई थी, वो अगर कम हो रही हैं तो बाकी हर जगह पे they are compensating for it in the south. Yes, yes. कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल sir, बिल्कुल, बिल्कुल। Well, anyway, we have, I think, have we got Dr. Sudhir Dhone with us? Dr. Sudhir Dhone's audio is still being checked. But anyway, he's not going to talk. On the... So, general वो trend वही चल रहा है sir, which we thought is going to happen. Kerala, Congress is going to sweep, and we always knew it. Rahul Gandhi seems to be absolutely strong where Kerala is concerned. Then Tamil Nadu, it's one-sided, DMK and the lines. So, as DMK always said that Annamalai cannot create any dent out here. Yes. It's only DMK. तो वो चीज़ एब्सोल्युटली दिख रहा है कि अन्नामलाई वाले भले बहुत मेहनत किया है, तो 1 से 3 सीटें, 2 से 4, लेकिन फिर भी प्रदीप जी 2 या 3 सीट भी अगर उनकी आ जाती है वहाँ पे तो बहुत बड़ी चीज़ है। Yes, उनके लिए। yes. But any event, Dr. Dhone is not going to be talking about the exit polls. He's not going to talk. He's made it very, very clear. बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा कि भाई वो सिर्फ ओवरऑल पॉलिसी की बात करेंगे। तो इस वक्त डॉक्टर ढोने हमारे साथ अकोला से। हाँ सर। डॉक्टर ढोने साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर, कैसे हैं? सर मजे में। तो ढोने साहब ये बताएं कि ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? तो आज तो अब पोल खत्म हो गई सारी की सारी। आपने मुझे कहा है, पहले कहा है आपने कि भाई वो आप माशाल्लाह वो क्या है कि वो एग्जिट पोल जो आ रही है उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि मोदी जी की विदाई तय है, मतलब कि या वापस आ रहे हैं मोदी जी 350 सीट लेके? मोदी जी की विदाई तय है, क्योंकि मोदी जी ने जो 5 चरणों में जो 7 चरण हुए उसमें जो मुद्दे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की है, एक मुद्दा लिया राम मंदिर का, फिर छोड़ दिया,
मेरे पास पूरा चार्ट है सर, जी आपको मैं बता सकता हूँ हाँ, कि बोलिए ना सर। 17 बोलिए सर प्लीज। मोदी जी ने जो है ना 17 मार्च से इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि मोदी जी के जो मुद्दे हैं चले नहीं इन्हें, इसलिए मोदी जी ने बाद के जो फेज है उसमें वो मुद्दे छोड़ दिए। जैसे आपको बताता हूँ, 17 मार्च से 5 अप्रैल में उन्होंने 10 भाषण दिए। हेलो, जी Yes, जी जी yes, सुन रहे हैं सर। हाँ 17 मार्च से 5 अप्रैल के बीच उन्होंने 10 भाषण दिए। उसमें उन्होंने राम मंदिर का उल्लेख 6 बार किया था। जी बाद में 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच उन्होंने 34 भाषण दिए। उसमें राम मंदिर का उन्होंने 26 बार किया, जी उसका उल्लेख 26 बार किया। फिर 21 अप्रैल से 15 मई के बीच में उन्होंने 67 भाषण दिए। उसमें उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लिया नहीं। तो उनको जब लगा कि राम मंदिर का मुद्दा अभी नहीं चल रहा, उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे मुद्दे छोड़े। उन्होंने मोदी की जो गारंटी है ये 7 बार बोले उन्होंने, पहले इसमें 17 मार्च से 5 अप्रैल के बीच 7 बार बोले कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। बाद में 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक उन्होंने वो 28 बार बोले, और फिर 21 अप्रैल से उन्होंने मोदी की गारंटी बंद ही कर दिए। जी एक भी बार नहीं बोले। 67 उनके भाषण रहे, उसमें उन्होंने एक बार भी नहीं बोले कि मोदी की गारंटी। तो राम मंदिर का मुद्दा, मोदी की गारंटी दूसरे चरण में बहुत जोरों से चला। तीसरे चरण में उन्होंने गायब कर दिया। लोगों को लगा कि, उनको लगा, मोदी जी को लगा कि ये मुद्दा नहीं चल रहा। तो उन्होंने कांग्रेस का जो था वो बाद में उनका क्या हुआ, पहले चरण में उनका था 17 मार्च से 5 अप्रैल के बीच उन्होंने 10 बार कांग्रेस का नाम लिया। 10 भाषणों में उन्होंने 10 बार कांग्रेस का नाम लिया। 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच जो है उनके भाषण में कांग्रेस बढ़ गई, 32 हो गई। जी और 21 अप्रैल से 15 मई के बीच उनके 67 भाषण हुए, 67, उसमें कांग्रेस 63 बार आई, 63। तो इसका मतलब पहले वो कांग्रेस का नाम नहीं लेते थे। जी पहले वो विकास विकास, राम मंदिर, मोदी गारंटी, ये विश्व गुरु, ये सब बातें बोलते थे। बाद में उन्होंने वो मुद्दा बदल दिया और अब कांग्रेस पे लग गए। क्यों बोले उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ? पहली बार बोले 10 बार, दूसरी बार 32 बार, तीसरी बार 63 बार। जब उनको लगा कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ जा रहा, अभी लोगों को रोकना चाहिए कांग्रेस की तरफ जाने से, तो उन्होंने 63 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो इस पर से जाहिर होता है कि उनको भी मालूम पड़ गया कि कांग्रेस का लहर उनके सब फेल हो गए थे। अब चैनल का जहाँ तक सवाल है डॉक्टर रोहन साहब, मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने पता नहीं क्यों 10 के 12 साल से बीजेपी को एग्जिट पोल में हारते हुए नहीं देखा है। हाँ एग्जिट पोल में हमेशा बीजेपी जीतती है। हाँ। भले वो कर्नाटका स्टेट का रिजल्ट हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, हमेशा बीजेपी जीतती है। इनफैक्ट पंजाब में भी उन्होंने बीजेपी को जिता दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, मतलब क्या नहीं है? वो तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जी सर। उससे वो एग्जिट पोल से भी बड़ी बात आपको बताता हूँ कि जब वो ये चुनाव चल रहा था बंगाल में, शायद बंगाल बंगाल बिहार में तो बिहार में ये जो चल रहा था टीवी चैनल पे, तो टीवी चैनल के एंकर बता रहे थे कि जो लालू जी के साथ उन्होंने अलायंस किया, नीतीश कुमार जी ने बहुत गलती की है, उसके वजह से वो हार रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। 2017 की बात कर रहे हैं आप? 2017 की बात कर रहे हैं? नहीं 2017 की नहीं बोल रहा मैं, 2022 की बात बोल रहा हूँ जी 2022 की बात बोल रहा हूँ। लेकिन 2022 में तो नीतीश जी बीजेपी के साथ थे ना? कौन? नहीं वे तो बाद में पलट गए वो। वापस पलट के फिर बीजेपी के पास आए। जी हाँ जी वो पलटू राम इसीलिए तो बोलते उनको पलटते हैं, कभी इधर कभी उधर। सर एक मुहावरा तैयार हो गया अभी पलटू राम, जो झूठ बोलता है, बात पे अड़ा नहीं रहता, पक्का नहीं रहता, उसको पलटू राम बोलते। तो मैंने देखा है सर चैनल पे कि लालू प्रसाद कैसे भ्रष्ट है, उनका लड़का कुछ काम का नहीं, उसके वजह से नीतीश कुमार का नुकसान हो गया। ये जो बातें चली उसमें ऐसा हुआ था कि लालू प्रसाद की पार्टी को, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें थी और नीतीश कुमार को दूसरे नंबर की सीटें थी। और चैनलों पे 12 बजे तक, 12-1 बजे तक भी दिखा दिया था कि भाई बीजेपी आ गई,
बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई, ये चल रहा था। एग्जिट पोल तो बहुत पहले रहता है। जी सुधीर तो जी, उसमें क्या आज है? खड़गे साहब ने क्लियर कट, आज खड़गे साहब के घर में इंडिया अलायंस के टॉप के नेता मिले। खड़गे हाँ। साहब बाहर निकलकर प्रेस को संबोधित करते हुए कि 295 सीट्स, 295 सीट्स, एग्जिट पोल के बात नहीं कर रहा हूं, खड़गे साहब ने जो बोला 295 सीट्स, इंडिया अलायंस के सब नेता ने अपने जो गणित है वो आपस में चर्चा किया और उससे ये निष्कर्ष निकला कि आप 295 सीट्स इंडिया अलायंस को मिलने वाला है, खड़गे साहब ने बोला। और खड़गे साहब ने यह भी कहा कि कल इलेक्शन कमीशन से मीटिंग करके एक मेमोरेंडम देने वाले इलेक्शन कमीशन को। तो ये बोला कि 10 साल अन्याय काल था, 10 साल जनता बेहाल था, खड़गे साहब का कहना। तो खड़गे साहब बहुत मीटिंग के बाद एकदम क्लियर कट और डिफाइंड है, वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। सुधीर जी देखिए ऐसा है, आपको मालूम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस तरह से बात करते हैं, बहुत जिम्मेदार है, बहुत अनुभवी है। और इलेक्शन के बाद ऐसा क्यों बोलेंगे? उनको जो मिला है, इनपुट मिला है, लोगों ने कहा है कि ये सीट जीत सकती, वो सीट जीत सकती। और कांग्रेस के नेता तो कोई ऐसा बताएंगे नहीं उनको झूठ कि भाई नहीं आ रही तो भी वो आ रही, ऐसा बताएंगे। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष उनके सामने ऐसा नहीं बोल सकता जो सीट नहीं आ रही वो भी आ रही, ऐसा बता नहीं सकता। क्योंकि बाद में तो 4 तारीख को तो मालूम ही पड़ने वाला है। तो 3 दिन पहले क्यों झूठ बोलेगा कोई नेता? वो तो बोलेगा नहीं भी ऐसा हुआ। तो उनको जो इनपुट मिला वो सही से इनपुट है, बराबर बोल रहे। 295 सीटें जो बोल रहे 295 उससे ही है, बराबर है, आएंगे उतने। और कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी कहां फेल हो गए, बोले डीमोनेटाइजेशन एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज था, गलत एक्सरसाइज था। मणिपुर लोगों ने मान लिया कि मणिपुर में आप कुछ नहीं किए। मणिपुर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसान आंदोलन, किसान पे कीले, जो रास्ते पे कीले वो आपने बिछाए, किसानों पर लाठीचार्ज, फिर जिस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अडानी स्कैम, ये सब फैक्टर्स है। सुधीर जी, कांग्रेस का कहना है, आपका कहना है ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे बीजेपी के जो डिक्लाइन के लिए। सुधीर जी सही बात है, बिल्कुल। देखिए जनता देखती रहती है, जनता बात नहीं करती, जनता देखती रहती है, अपने मन में रखती है और इलेक्शन के दिन बराबर बटन दबाती है। ऐसे ही होता है, हमेशा देखा है कि लोगों में ऐसा लगता है कुछ नहीं भाई, लोगों का क्या है, अपन बताने में सक्षम नहीं है, यानी फेल हो गए, लेकिन लोग बराबर ध्यान देते हैं और जब मौका आता है तो बराबर दिखाते हैं। इसीलिए तो सरकारें पलटती है ना, आज इसकी वो कल उसकी। ये क्यों होता है? लोग अपने दिल में बात रखते हैं और इलेक्शन के दिन बता देते हैं। तो ये जो अन्याय काल है ये लोगों ने देखा है। और देखिए फिर हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि जो मोदी जी के जो भक्त थे, अंधभक्त, बहुत कम हो गए, अब इतने ताकत से बात नहीं करते। लेकिन एक चीज बताएं सर, धोनी साहब, अगर मान लीजिए कि मोदी जी असल में भारतीय जनता पार्टी के लिए 325 सीट लेकर के आ जाते हैं, तो फिर क्या? अब देखिए जनता का जो है, जनता का आदेश तो किसी को मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा जी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए हो गया तो नहीं, जनता का निर्णय तो फिर मान्य, सबको मान्य है, उसमें हाँ, क्या कर सकते हैं? नहीं, हाल ही में तो हो सकता, हाल ही में किशोर तिवारी जी जो उद्धव ठाकरे सेना के प्रवक्ता हैं और बहुत पुराने, आप जानते हैं उनको, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, किसान लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए लोग जो है मानेंगे नहीं, क्योंकि लोगों का अगर 200-250 के करीब बीजेपी आ भी जाती है तो फिर भी ठीक है, 300 से ऊपर अगर बीजेपी आती है तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। क्या आप ये मानते हैं? नहीं, वो ऐसा बराबर बोल रहे हो कि भाई बीजेपी को 300 सीटें आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता में उनके खिलाफ माहौल है। तिवारी जी जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि जनता में उनके खिलाफ जो माहौल है वो देखते हुए वो बता रहे हैं। सही बात है उनकी कि जनता में बीजेपी के खिलाफ बहुत माहौल था। महाराष्ट्र में तो हमने देखा है उनके खिलाफ बहुत ही माहौल था, यानी उन्होंने जो है शिवसेना को तोड़ा। और उद्धव ठाकरे जो है उनके नेतृत्व में 2014 में जब आमने सामने लड़े बीजेपी और शिवसेना, फिर भी 63 सीटें उनकी आई थी शिवसेना की। तो जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे, वो शिवसेना प्रमुख थे, उनके वक्त भी इतनी सीटें नहीं आई थी, उतनी उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में सीटें आई थी। उन्होंने बता दिया कि उनका नेतृत्व सही नेतृत्व है। तो जैसा बोलते बाप से बेटा सवाई,
वैसे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो बाला साहब ठाकरे से भी वो ज्यादा सीटें लाए। तो फिर भी ये मोदी जी बोलते हैं कि नकली सेना है वो। एक ये लोगों को पसंद आया नहीं। और वो जिन्होंने राष्ट्रवादी की स्थापना की, एनसीपी की, शरद पवार साहब ने 99 में उसकी स्थापना की, फाउंडर प्रेसिडेंट है वो, आज अभी है, जीवित है, उन्होंने प्रचार भी किया। इसके बावजूद भी आज बोलते हैं कि नकली एनसीपी। तो ये लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को मालूम है नकली एनसीपी कौन है, अजित पवार नकली एनसीपी है। और नकली शिवसेना कौन है, एकनाथ शिंदे नकली शिवसेना है। ये लोगों के दिल में था। आप लोगों के दिल में जो भावना है उसके खिलाफ अगर बात करेंगे तो लोगों की नाराजगी आ जाएंगी। तो ये नाराजगी आ गई कि आपने पार्टियों को फोड़ा, तो 50 खोखे बोले, 50 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को दिए। तो ये सब लोगों ने देखा है, लोगों को पसंद नहीं आई ये बात। सुधीर जी, बीजेपी ने रिलीज किया है डाटा, बोले कि 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ हासिल किया है। ये मोदी जी के पॉलिसीज, मोदी जी के फॉरवर्ड थिंकिंग, मोदी जी के इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, आइडियोलॉजीज, इसका नतीजा है कि आज 8.2% जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर पाए। और जेपी नड्डा जी ने कहा कि थर्ड टर्म, हम तो ये टर्म जीत ही रहे हैं, वी आर विनिंग। हम डेवलपमेंट के स्पीड, डेवलपमेंट के स्किल, डेवलपमेंट का स्केल एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, हम प्रतिबद्ध है ना। कैसे आप देखते हो कि ये जीडीपी ग्रोथ 8.2% बोले कि स्टैटिस्टिक्स है, सरकार का स्टैटिस्टिक्स है 23-24 का, और नड्डा साहब का कहना कि नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, मोदी जी जा रहे हैं, हम चुनाव हैट्रिक कर रहे हैं। सुधीर जी, नहीं, जीडीपी निकालने का उनका जो तरीका है ना, उन्होंने गलत तरीके से जीडीपी निकाली है। वो चुनाव के लिए उन्होंने निकाला उस तरह से। अगर देखिए, रघुराम राजन हो गए या ये अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन के पिता, हस्बैंड, उन्होंने क्या बोला अभी, रघुराम राजन जी ने क्या बोला, ये तो रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक के ये थे, गवर्नर थे, उन्होंने देखिए क्या बोला है। तो इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, लोग भाग रहे पैसे लेके बैंकों से, बैंकों को डुबा के विदेश में जा रहे हैं, कैसे जीडीपी आगे बढ़ेगी। और जो पैसे है वो देश के पास कुछ गिने चुने उद्योगपति के पास ही आ रहे हैं, देश के पास कहाँ आ रहे हैं। देश की जो कंपनियां हैं वो इन्होंने बेच दिए, जो प्रॉफिट में कंपनी थी वो बेच दिए। तो कैसी बात कर दी, ये तो सब इलेक्शन के लिए दिखा रही है। हालांकि देश में जो इकोनॉमिक्स में जो पंडित है, बोलेंगे ज्ञानी लोग है, वो तो कोई भी इनकी बात नहीं मान रहा कि इनके वक्त में ऐसे जीडीपी की बढ़ोतरी हुई है, कोई नहीं मान रहा है। लेकिन इतना यहाँ ये बात तो है कि जहाँ तक जीडीपी की कैलकुलेशन है, उसका बेस ईयर चेंज कर दिया है आपने। अगर आप बेस ईयर चेंज करोगे तो जीडीपी ज्यादा ही दिखेगा। अगर मान लीजिए आप बेस ईयर लेंगे जब कोविड आ गया, वो अगर आप बेस ईयर लेंगे, उस वक्त तो इकोनॉमी बिल्कुल जीरो थी, बल्कि माइनस में गई थी। अगर वो बेस ईयर लेंगे तो अभी तो आई एम सरप्राइज कि इन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर ग्रोइंग एट 10%, 10 के 11% पे क्यों ग्रो नहीं कर रहे हम लोग। तो मतलब नहीं, तो अजीब है थोड़ा सा। और इनके समय में 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने राइट ऑफ कर दिए उद्योगपतियों के। 16 लाख हाँ, 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए। सर वो राइट ऑफ नहीं किया है, वो बिलो द लाइन किया है। दैट वो ये कहते हैं दैट इज टू बैलेंस द बुक्स ऑफ द बैंक्स। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करेंगे उन पैसों को वापस लेने की, सिर्फ ये है कि बैंक की बुक्स में नहीं दिखेगा वो, दैट्स ऑल। अच्छा, नहीं ठीक है, वो किसानों का भी वैसे कर दो बोलना। सर जी, किसानों का भी वैसे कर दीजिए एक बार। सर किसानों की जैसा बात उद्योगपतियों का करते वैसा किसानों का क्यों नहीं करते वैसे ही। सर मुझे समझ में नहीं आता। आफ्टर ऑल जब आप थे, चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त मुझे अभी तक याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त पे 69,000 करोड़, फिर उसको 3,000 करोड़ से इंक्रीज किया गया, 72,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया गया। अब ठीक है, वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स को फायदा मिला जिसकी वजह से एनसीपी और स्ट्रांग हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी राइट ऑफ तो हुआ ना। या तो सही, अब ऐसा ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि नहीं, हम तो किसानों हम किसानों का कर्जा राइट ऑफ करते हैं, वो उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ करते हैं। हमारे दोस्त किसान है जी, कांग्रेस के दोस्त किसान है, उनके दोस्त उद्योगपति है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग ये सब याद उन्होंने रखा होगा जब उन्होंने बटन दबाया होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि
अगर उन्होंने बटन हाथ पे दबाया होगा तो वोट भी हाथ पे ही पड़ा होगा, कमल पे हाँ नहीं पड़ा बिल्कुल होगा। बिल्कुल पड़ा है। अभी और एक बात देखिए, जी उनके जो भाषण में देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी जी का जो इंटेलिजेंस है उनको बताता रहा कि ऐसा हो रहा सर, वैसा हो रहा सर, और ये देखिए देश में ऐसे माहौल है। तो उन्होंने देखे खुद उनके मेरे पास है इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है, उसका मराठी ये अखबार है लोक सत्ता, महाराष्ट्र का अच्छा लीडिंग ये है, उसमें सब आया है कि मोदी जी के भाषण में क्या क्या बोला उन्होंने, जी वो सब उसमें है। तो देखिए सबसे जो आखिरी है ना, 21 अप्रैल से 15 मई के दरमियान जो उन्होंने बोले, उन्होंने हिंदू मुस्लिम 60 बार बोले, 60 बार, जी जो पहले उनके भाषण में नहीं था। 21 अप्रैल के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू किया। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि पहला और दूसरे कहीं चरण में ऐसा तो ठीक नहीं है ठाक- उसकी वजह से पूरा हिंदू वोट जो है कंसोलिडेट हो गया हो बीजेपी की तरफ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो 26 को इलेक्शन हुआ, कहाँ जी। हुआ ऐसा? महाराष्ट्र में 26 को हुआ, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं दिखा ऐसा। उल्टा इनके जो 400 पार के नारे की वजह से मुस्लिम और दलित जो वोटर है वो डर के मारे बहुत ज्यादा तादाद में वोटिंग को निकले हैं, तो बीजेपी को उसमें नुकसान ही हुआ है। आपने बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आर्टिकल 370 पर जो बयान दे दिया है, बयानबाजी किया है, देश हित के खिलाफ किया। आपने रीजनल एस्पिरेशंस को आपने महत्व दिया और देश के बारे में कम सोचा। ओवरऑल तुष्टीकरण में भी आपने तुष्टीकरण को पहले माना। तो ये कैसे आरोप है आप लगेगा कि आपके देश हित में जो भी काम आता है उसमें भी आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। जो आपका बयान था, बीजेपी ने कहा कि निंदनीय है, कांग्रेस ने जो किया वो गलत किया, आर्टिकल 370 में जिस प्रकार से बयानबाजी की है। अच्छा, बीप के बारे में क्या कहना है बीजेपी का? बीप के बारे में पूरे देश में बीप बिल्कुल बीप के बारे में क्या कहना है? बीप पे पाबंदी लानी चाहिए। बिल्कुल लोगों के घर पर जाके यूपी बिहार महाराष्ट्र में मुसलमानों के घर पे जाके देख रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या खाना खाया है, गाय का है, बैल का है, बकरे का है, ये सब देख रहे हैं। और गोवा में बोलते हैं कि हम बीप को बैन नहीं करेंगे, केरल में बोलते हैं कि बीप को बैन नहीं करेंगे। तो ये नहीं है उनकी तुष्टीकरण की नीति। और अगर कांग्रेस ने बोला होगा कि 370 कलम का महाराष्ट्र को क्या फायदा है, सही बात है। उसमें देश में कौन सा ऐसा 370 की कलम की जो बात है, ये भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन आम जनता को उसमें फायदा क्या दिख रहा? उनके उद्योगपति दोस्तों को जमीनें मिल गई, उतना ही हुआ, पूरा कैंसिल तो हुआ नहीं। 370 कलम पूरा कैंसिल नहीं हुआ। उसमें कुछ प्रोविजन जो है उन्होंने वो हटा दिए कि भाई यहाँ जमीन कोई दूसरा गैर कश्मीरी आदमी जमीन नहीं खरीदी कर सकता। ये जो प्रोविजन था हटा दिए, उसका फायदा उनके उद्योगपति मित्रों को हुआ, तो ये वो फायदा उनका हुआ, आम पब्लिक को दिखा ही नहीं। देखिए कांग्रेस जो बात करती है, वो भी बात करते हैं, भाजपा या कांग्रेस लोगों के वोट लेने के लिए जो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों के दिल की बात बोलने की कोशिश करती है। तो हमने भी लोगों के दिल की बात बोलने की कोशिश की कि क्या फायदा हमको, 370 कलम रद्द कर दिया आप बोल रहे हैं, उसमें हमको क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा? 10 साल उन्होंने कहा कि 10 साल 10 कमाल में कश्मीर एक कमाल है। बीजेपी का कहना है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वहां पर दिया, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज दिया, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी वहां पर दिया, 2 एम्स, 7 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स, मेट्रो लाइन जम्मू में, श्रीनगर। तो एक आंकड़ा उन लोग स्टैटिस्टिक्स दे दिए। देखो नहीं, बोलिए। तो वो पूरा आंकड़ा दे रहा, श्रीनगर से हमने वो आईटी पार्क बना दिया, 7000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट, श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन हमने चालू कर दिया है, सांबा में एम्स उधमपुर हमने चालू कर दिया है, जम्मू तो एक एक आंकड़ा दे रहा कि देखो हमने क्या क्या किया कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, जस्टिफाई कर रहे वो। सुधीर जी ऐसा है, वो जो बोलते हैं एम्स का, आईआईटी की जो बात करते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल सुधीर जी, एम्स और आईआईटी की जो बात करते हैं, तो हमारे कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर साहब, उन्होंने एक राज्यसभा में प्रश्न पूछा था कि पिछले 5 साल में कितने आईआईटी और आईआईएम की स्थापना हुई है। तो जवाब में मिनिस्टर ने आंसर दिया कि पिछले 5 साल में एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं बना है। लिखित उत्तर है, लिखित उत्तर।
राज्यसभा में। और उसके पहले 4-5 महीने पहले मोदी जी ने विदेश में जाके कहा कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ, हमारे सरकार में ऐसा हुआ, इतने आईआईटी खुले, इतने आईआईएम खुले, इतने स्कूल खोले, इतने हॉस्पिटल खोले। सब गलत बातें निकली। उनके मिनिस्टर ने बता दिया कि एक भी नहीं खुला। तो ये सब उनकी झूठी बातें रहती, हवाई बातें रहती कि हमने इतने बोला। जब मिनिस्टर ने जवाब दिया कि एक ही भी आईआईटी और आईआईएम नहीं खोले, आप तो बता रहे कि हाँ उन्होंने बोला है आईआईएम खोले, आईआईटी खोले, तो कहाँ दिए जवाब में? जवाब को मिलके 6-8 महीने हो गए सिर्फ। लेकिन आज की तारीख में हर जगह पे जब भी बीजेपी से बात करो वो यही आंकड़े देते हैं, इतने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल गए, इतने आईआईटी खुल गए, इतने इंडियन इंस्टीट्यूट। नहीं, बोलते हैं सिर्फ वो भाषण, वो बोलते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं रहता है वैसा। अगर हकीकत में रहता है तो राज्यसभा में झूठ थोड़ी बोलेंगे उनके मिनिस्टर। राज्यसभा में लिखित प्रश्न में दिया है उन्होंने। कुमार केतकर साहब और दूसरी बात है, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता देश के किसी भी हिस्से से हो, खुदा ना खास्ता अगर उसकी बीमारी हो जाती है, बेचारा जब बीमार पड़ता है वो सीधा दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्यों आता है? हाँ हाँ, वो साथ में जो एम्स खुला है वहां जाना चाहिए ना। नहीं। और उनकी जो बात करते हैं ना कि हमने आरोग्य व्यवस्था ऐसी की, वो दिख गई वहां पे यूपी में जी। लोग है ना ऐसे ही फेंक दिया लोगों को। कोरोना के समय लोगों को जलाने की व्यवस्था नहीं थी, उनको दफन करने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही नदी के किनारे उनको फेंक दिया, ऐसे गाड़ दिया रेत में, इस तरह से व्यवस्था हुई। तो कहाँ आरोग्य व्यवस्था कहाँ चली वहां पे? महाराष्ट्र में तो कितनी अच्छी व्यवस्था चली। उद्धव ठाकरे साहब ने कितना अच्छा ध्यान दिया। ऐसी बदहाल व्यवस्था नहीं थी महाराष्ट्र में जैसा यूपी में हुई थी। तो इनके सब दावे खोखले हैं सर। लेकिन फिर भी बार बार वो ये कहते हैं कि उद्धव जी ने अपने 2 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घर में बैठे रहे। आपको नहीं, हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। नहीं गलत, वो तो देखिए, वो तो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से हार जाए, वो भी हार जाए, उनकी एक भी सीट नहीं आए, और पूरी शिवसेना की जो सीटें, पूरे भाजपा की सीटें आए पूरे, ये चाहते, शिवसेना खत्म हो जाए ये चाहते। इसलिए उद्धव ठाकरे साहब के खिलाफ बात करते हैं। मैंने देखा है जो नर्सेस है, अब मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं लोगों के पेशेंट के लिए जाता हूँ। मेन हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में लोग फोन करते हैं, हम जाते हैं, क्या हुआ, कैसा क्या हुआ। तो वहाँ के जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उन्होंने बताया था कि देखिए उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। और आपको एक बात बोलता हूँ कि वो उनके सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ सब तरह से। वो बातें नहीं करते थे, वो काम करते थे। उनपे एक आरोप लगा कि घर पे बैठ के काम किया उन्होंने, घर से निकले नहीं। वो मंत्रालय में नहीं गए होंगे, लेकिन उन्होंने मीटिंग लिए, सह्याद्री गेस्ट हाउस में लिए, मलबार हिल में लिए, अपने वो उनके बंगले पे लिए। तो उन पे जो आरोप है वो तो उनको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कोशिश भी की बर्बाद करने की, लेकिन आज भी उद्धव ठाकरे साहब को 12 सीटों से ऊपर ही मिल रही। पिछले बार भाजपा के साथ रहते हुए उनकी जितनी सीटें मिली थी उससे ज्यादा भाजपा के खिलाफ लड़के उनको मिली। 2014 में भी देखिए, 2014 में वो लड़े, 63 सीटें लाई थी उन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़के विधानसभा में। और जब भाजपा के साथ आ गए 2019 में तो 56 सीटें आ गई। लेकिन आप ये बताएं सर, चलते चलते आपके मुताबिक आपको कितनी सीटें आ रही हैं सर? अकेली कांग्रेस को? पूरा ऑल इंडिया लेवल पे, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे? जी, ऑल इंडिया लेवल पे। देखिए ऐसा है कि आज खड़गे साहब ने जो मीटिंग ली है उसमें उन्होंने सब प्रदेश अध्यक्ष को और बाकी जो अलायंस के जो है मित्र पक्ष, उनको पूछा कि आपकी कितनी सीटें आ रही। अब उसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो तो मैंने इसके पहले बताया कि वो झूठ तो बता नहीं सकते, जितनी सीटें आ रही उतनी बोली होंगी, नहीं तो बाद में पूछेंगे आप तो दावे तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, इतनी सीटें कम क्यों आई? इसलिए हो सकता है कि उन्होंने 1 सीट कम ही बताई होंगी। अगर 10 आ रही तो उन्होंने बताएंगे 8-9 सीटें आ रही सर, क्योंकि उन्होंने अगर 10 बोली और आई 5 तो 4 दिन के बाद खड़गे जी बोलेंगे क्यों? तो इस तरह से जो आज मीटिंग में जो सामने आया सच, तो लोगों ने जो कम से कम सीटें जीतने वाली है वही बताई, वो 295 है। इसका मतलब इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। क्या बात है सर, मुबारक हो आपको। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी चीज को रिपीट करेंगे 4 जून को। रिपीट करेंगे जी। और
और आपको मिठाई भी लेके आएंगे। क्या बात सर वो मिठाई तो हम वैसे भी खा लेंगे आपकी, भले आप हारे या जीते मिठाई तो खाएंगे हम आपसे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल तो प्रदीप जी मतलब कांग्रेस का व्यू बिल्कुल टोटली अपोज्ड है टू दी एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, वो तो सर, मतलब दिल्ली तो क्लीन स्वीप बीजेपी का दिखा रहे हैं। हाँ 6-1 जैसे लास्ट टाइम हुआ था 7 की 7 दिल्ली में कांग्रेस को आई, बीजेपी को आई थी, इस बार भी पूरी की पूरी आएंगी। यस यस और तो और छोड़िए, पंजाब भी वैसा ही बोल रहे हैं कि Yes, पंजाब में yes. भी बीजेपी, मतलब पंजाब में बीजेपी को कोई पूछता नहीं है। करेक्ट है। तो ये एग्जिट पोल के ऊपर तो मुझे जरा सवालिया निशान दिख रहा है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बिकॉज दिल्ली ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ना आई डोंट थिंक सो आइदर। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट वेट इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा सर। बिकॉज एवरीबडी प्रेडिक्टेड 7-0 अगेंस्ट द बीजेपी। द Sir- बीजेपी विल नेवर ओपन द अकाउंट इन दिल्ली। सर 4-3-5-2 ऐसा करके हो रहा था, लेकिन फॉर द बीजेपी टू विन 6 इन ऑल लाइकलीहुड 7 probably and for the India Alliance to get only 1 is I think a bit much. यस यस, सवाल ही नहीं उठता। Unless these guys know something about Delhi which I don't. I've been born in Delhi, I've grown up in Delhi, I know Delhi very well. और अगर दिल्ली के लोगों ने इस किस्म की वोटिंग करी है फिर तो भाई आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री। और ये याद रखिए, In spite of all what happened, Kejriwal out, Kejriwal campaign, the whole Delhi was up with him, on the streets, on the road, fighting with him. And in spite of all this, if the exit polls say that Aam Aadmi Party might just get 1 seat, then एंड द कांग्रेस नथिंग। yes. मतलब जयप्रकाश अग्रवाल जी भी अपनी सीट हार जाएंगे चांदनी चौक में। बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, मालूम पड़ जाएगा सब 3 दिन की तो और बात है ऐसे ऐसी।